Hello students, good morning. Today I am going to explain about the first chapter of your chemistry, that is some basic concept of chemistry. And now what are the different topic that includes in this chapter? These are the different topic that we are going to compile in this chapter according to the CBSE syllabus. Now start with the introduction part. What are the different introduction part? We are going to start with about the chemistry. What is chemistry first? What is chemistry? Chemistry क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम. Now, this is the definition. The branch of science which deals with the study of the composition, structure and properties of the matter and their changes and laws associated with that change. This is all about the chemistry. Now, the second basic part that you have already studied in the 9th or 10th class, that is about the matter. What is matter? You have heard about this. Basically, everything or anything on the earth or universe which occupy their space and have some mass, that is called matter. और इसी जितनी भी चीजें हैं जिसके बारे में हम जानते हैं या नहीं जानते हैं उसको हम मैटर कहेंगे. Now, second, what is substance? Now, this is the very popular term, that is substance. What is substance? Substance is basically matter, but known matter is called substance. So what is exactly substance? The matter which is taken under observation and which can be applied and which can be experimented. That is called substance. Now, what are the different states of matter? मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो there are three states, that is solid, liquid and gas. And what are the difference? सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में रिजिडिटी ज़्यादा होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. लिक्विड में उसके मुकाबले सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में उसके मुकाबले कम होता है, गैस में सबसे कम होता है. देन इफ यू थिंक अबाउट द इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम और सॉलिड में सबसे कम. These are the different property you have already studied about this. You can consider about the compressibility. Gas are most compressible, solid are least compressible. You can consider about the fluidity. The gas is most fluidity property, liquid is less and solid has least. If you think about the kinetic energy, gas has highest kinetic energy, liquid has lesser than gas and solid has least kinetic energy. But if you think reverse, as the potential energy, solid has highest potential energy. So these are the different difference between the solid, liquid and gas that you have already studied. If you consider about the classification of the matter, तो क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? तो दो तरीके के मैटर होता है. एक प्योर मैटर हम कहेंगे उसको और दूसरा इम्प्योर मैटर. प्योर मैटर मतलब जो प्योर फॉर्म में होता है और इम्प्योर मतलब जो इम्प्योर रहता है, जिसका कंपोजिशन का पता नहीं होता. इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर भी कहते हैं और प्योर मतलब जिसके कंपोजिशन के बारे में हमें पता होता है कि कितना रेशियो में वो कंबाइंड है. इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड बोथ आर प्योर. और मिक्सचर इज इम्प्योर बिकॉज मिक्सचर जो फॉर्म करता है उसमें रेशियो का हमें पता नहीं होता कि किस रेशियो में, किसी भी रेशियो में मिक्सचर को हम कंबाइन करके बना सकते हैं. मसलन एक ग्लास वाटर लिया और 1 स्पून शुगर डालो, मिक्स करो, वो मिक्सचर बनेगा. एक ग्लास वाटर लिया, 2 स्पून डालो, तब भी मिक्सचर बनेगा, तब भी मिक्सचर की प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी. हाँ, स्वीटनेस किसी की ज्यादा है, किसी की कम होगी, लेकिन स्वीटनेस सावरनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, स्वीटनेस बिटरनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या हुआ कि मिक्सचर किसी भी कंपोजिशन में बनाया जा सकता है, बट एलिमेंट्स और कंपाउंड किसी भी कंपोजिशन में नहीं बनता. एलिमेंट्स प्योर फॉर्म ऐसे भी होता है, इसके लिए इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस इंक्लूडेड नहीं होता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स किसी एक ही टाइप के मैटर से बना होता है.
which is made up with the same types of matter and which cannot be separated by any chemical or physical processes. उसको अलग हम नहीं कर सकते chemical या physical process से. That's why this is the pure substance. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो O2 है, तो ऑक्सीजन में सारे ऑक्सीजन मैटर ही है, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता. अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन ही है, उसमें कोई दूसरा नहीं हो सकता. नाउ अबाउट द कंपाउंड. व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज मेड अप विद द two or more than two different types of the elements in fixed ratio. Whenever the two or more than two different types of element combined together in fixed ratio, that will be formed compound. वही compound बनाएगा. अब as for example जैसे H2O है, H2O एक compound है, इसके बारे में जानते हैं. तो H2O में H2O तभी पॉसिबल है जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन हो. अगर हम नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नंबर में होगा. मास रेशियो अलग होगा लेकिन नंबर रेशियो 2:1 होगा. तो जब भी टू एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल फॉर्म ऑलवेज H2O. लेकिन अगर हम ये चाहें कि दो एटम ऑफ हाइड्रोजन और दो एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाए तो वाटर नहीं बनेगा, कुछ और बन सकता है या मे भी कुछ भी ना बने. तो ये पॉसिबल है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. जैसे हम टू और मोर देन डिफरेंट H2SO4 लेते हैं, ये भी एक कंपाउंड है. इसमें दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन है. तो इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1:4 है. नंबर रेशियो की बात आई एम टॉकिंग अबाउट. तो जब भी दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तभी H2SO4 बनेगा. अगर हम इस रेशियो में जरा भी चेंज करेंगे तो ये नहीं बन सकता. नाउ दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कंपाउंड का? इस कंपाउंड का, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. कोई भी फिजिकल मेथड लाइक बॉइलिंग या लाइक डिस्टिलेशन, लाइक फिल्ट्रेशन, इस मेथड से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते. H2SO4 को फिल्टर करके उसके हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर को अलग नहीं कर सकते. बट केमिकली वी कैन डू. केमिकल मेथड से हम कर सकते हैं इसको. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड. नाउ थिंक अबाउट द मिक्सचर. तो मिक्सचर बेसिकली दो टाइप का होता है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर. तो क्या डिफरेंस है होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर में? होमोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी दोनों कंपोनेंट आपस में अच्छी तरह से मिक्स होते हैं, उसकी सैचुरेशन इक्वल होती है, होमोजेनिटली स्प्रेड आउट होता है दोनों एक दूसरे में. बट हेटेरोजेनस में ऐसा नहीं होता. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल करने की कोशिश करें तो होमोजेनस मिक्सचर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्योर सॉल्यूशन. प्योर सॉल्यूशन है वो. जैसे एक ग्लास वाटर में एक चम्मच शुगर डिजोल्व किया तो क्या होगा? शुगर हर जगह होमोजेनिटली स्प्रेड आउट होगा. अगर उस ग्लास के टॉप पार्ट से हम उस मिक्सचर को टेस्ट करके देखें स्पून से लेके, तब भी उतनी स्वीटनेस होगी. अगर बॉटम पार्ट से लेके देखें तब भी उतनी स्वीटनेस होगी. तो दैट विल बी द होमोजेनस मिक्सचर. दूसरा एग्जांपल है एलॉय. एलॉय इज द होमोजेनस मिक्सचर. और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है? जिसमें होमोजेनिटली स्प्रेड आउट नहीं होता. जैसे अगर हम वाटर एंड सैंड का मिक्सचर करें तो ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है. क्यों? अब यही वजह है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर हमेशा स्टेबल नहीं होता. जब सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को मिक्स कर दें और थोड़ी देर छोड़ दें तो सैंड विल बी सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम. दैट मीन्स दिस इज नॉट स्टेबल बट दिस इज स्टेबल, क्योंकि ये हमेशा रहेगा जब तक कि हम इसको सेपरेट ना करें. नाउ इस मिक्सचर को हम किसी भी मेथड से, आइदर फिजिकल और केमिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं. जैसे अगर हम होमोजेनस मिक्सचर की बात करें, शुगर एंड वाटर के मिक्सचर को, तो उसको बॉइलिंग मेथड से, हीट करके, डिस्टिलेशन मेथड से अलग अलग कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और शुगर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है. जब हम हीट करना शुरू करेंगे तो वाटर पहले बॉयल होकर के इवेपोरेट आउट हो जाएगा एंड शुगर लेफ्ट एज ए रेसिड्यू. तो हम सेपरेट आउट कर सकते हैं उसको. जैसे हेटेरोजेनस मिक्सचर वाटर एंड सैंड का मिक्सचर लिया तो उसको हम फिल्टर आउट करके कर सकते हैं. दीज आर द डिफरेंट फिजिकल मेथड दैट वी कैन इजीली, बाय यूजिंग दैट मेथड वी कैन इजीली सेपरेट आउट द मिक्सचर. बट कंपाउंड को हम इस मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते. तो दीज आर द डिफरेंट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द यूनिट ऑल्सो. तो व्हाट इज यूनिट? आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक बात जरूर बताऊंगा
कि यू हैव टू राइट डाउन सिंसियरली, और आप नोटबुक जरूर बनाइए अपने वीडियो से। मैं नोट्स भी आपको भेजता रहता हूँ टाइम टू टाइम, और जो भी नोट्स भेजा है उसका वीडियो है। तो पहले मैं नोट्स भेजता हूँ, देन आफ्टर आई सेंड द वीडियो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बट बिफोर दैट, नोट्स के साथ साथ आप इससे भी नोट्स बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, क्योंकि लेक्चर की बात अलग होती है, नोट्स की बात अलग होती है। नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, that is the unit. Now I have finished the fundamentals, basic. Now I have to start the unit. A unit is defined as the standard to reference chooses to measure any physical quantity. मतलब क्या हुआ कि कोई भी physical quantity को measure करने के लिए जो standard define किया जाता है, that will be called unit. इसी को हम unit कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखें, standard to reference chosen to measure any physical quantity, ये बहुत जरूरी है। नाउ किसी भी चीज को, लेट्स से एग्जांपल कि आपको किसी का मास मेजर करना है, तो यू हैव टू नीड सम यूनिट। किसी का लेंथ मेजर करना है तो यू रिक्वायर्ड सम यूनिट। तो इस तरीके से किसी को भी कैलकुलेट करने के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ वी हैव ओनली 3 टाइप्स ऑफ द यूनिट्स। द फर्स्ट यूनिट इज बेसिक, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट, एंड सेकेंड वन इज डेराइव्ड यूनिट, थर्ड वन इज सब्सिडियरी यूनिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या डिफरेंस है इन सब में, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट द बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्या होता है? तो देयर आर ओनली 7 बेसिक एसआई यूनिट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उसको डिसाइड किया गया है, और हर कंट्री में यही चलेगा। एसआई मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक यूनिट की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स, एसआई एंड सीजीएस यूनिट। So we are talking about always SI unit. Now, so there are 7 types of basic, fundamental, and their SI unit is meter, meter for length, kg, kg for mass, mass physical quantity है, उसके लिए kg की requirement होगी। second किसके लिए होती है? टाइम के लिए होती है। Now एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए होती है। केल्विन किसके लिए होती है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए होती है। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, मोल के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल करेंगे, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी के लिए होती है। तो ये सारा का सारा डिफरेंट 7 बेसिक यूनिट्स है। नाउ गो फॉर द डेराइव्ड यूनिट। तो यूनिट में क्या इतना ही का फर्क है कि इफ यू डेराइव द यूनिट बाय यूजिंग बेसिक, दिस इज कॉल्ड द डेराइव्ड यूनिट। तो कैसे हम करेंगे? जैसे हमारे पास अगर हम वॉल्यूम की बात करें, व्हाट इज बेसिकली वॉल्यूम? अगर वॉल्यूम की बात करें तो किसी का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे? जैसे एक क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू डेप्थ। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारे के सारे लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ क्या है? एक डिस्टेंस है, तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब विल बी द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब उसके लिए सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आल्सो वॉल्यूम। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज द मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम है, और मास का यूनिट क्या है? दैट इज केजी, जो बेसिक यूनिट है, तो केजी लिख दिया। और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? केजी पर मीटर क्यूब, और केजी मीटर क्यूब इनवर्स, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा। अब केजी की जगह तुम ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हो, और वॉल्यूम की जगह सेंटीमीटर क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अभी हम कन्वर्जन यूनिट ही बताएंगे कि यहाँ पर एक बात और आती है कि लीटर किसका यूनिट है फिर, तो उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज द सब्सिडियरी यूनिट। सब्सिडियरी यूनिट क्या होता है? दिस यूनिट इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ द मल्टीपल ऑफ द बेस यूनिट। जो भी बेस यूनिट है उसके मल्टीपल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये कन्वर्जन यूनिट में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे डेसी है, 10⁻⁻1 को डेसी कहते हैं। मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹, पिको 10⁻12 एंड फेंटो 10⁻15। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, जैसे एंस्ट्रॉम 10⁻10 को कहते हैं। इस तरीके के यूनिट्स होते हैं। जैसे अगर हमें कन्वर्ट करना हो, कन्वर्जन करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे अगर हम इसमें मीटर लगा दें तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻1 मीटर।
इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउ जैसे अगर हमें मिली की कन्वर्जन निकालना हो तो मिली में भी ऐसे ही करेंगे, मीटर लगा देंगे। अगर हमें लीटर लगाना हो तो लीटर लगा सकते हैं। जैसे 1 नैनोमीटर, nm मतलब नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 फेंटोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इस वजह से इस तरीके से हम कन्वर्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन यूनिट है, बड़ी आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अभी मैंने बात किया था कि वॉल्यूम का यूनिट, डेराइव्ड यूनिट में आपको याद होगा, जिसमें मैंने बताया था कि मीटर क्यूब निकाला था उसका, या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो कैसे लीटर से इसका रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कन्वर्जन है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब मीन्स व्हाट, कि अगर हम एक क्यूब लेते हैं और सारे क्यूब का लेंथ, ब्रेथ और हाइट, डेप्थ, ये सब के सब 1 डेसीमीटर है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब उसका मल्टीपल आएगा तो वो 1 लीटर के बराबर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml के बराबर होता है, 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन यूनिट है जो आपको हेल्प करेगा। अगर हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े या लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो कितना हो जाएगा, लीटर बड़ा यूनिट हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर डेसीमीटर बड़ा यूनिट होता है सेंटीमीटर से। तो ये 10⁻³ लीटर के बराबर हो जाएगा। सेम वे 1 मीटर क्यूब अगर हम देखें तो 1000 लीटर के बराबर हो जाएगा, 10⁻³ लीटर के बराबर हो जाएगा अगर हम मीटर करें। क्या कैसे पता चला, तो ये डेसीमीटर बीच में है, यहाँ पर नीचे सेंटीमीटर है और यहाँ पर ऊपर मीटर है। तो ये सब 10 के डिफरेंस मल्टीपल में आगे पीछे हो रहा है, तो इस वजह से ये कन्वर्जन यूनिट बड़ी आसानी से हो गया। नाउ कुछ अदर कन्वर्जन यूनिट है जो टेम्परेचर के लिए और इस्तेमाल होता है। जैसे डिग्री सी को अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सी इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32, या फ़ारेनहाइट को डिग्री सी में कन्वर्ट करना हो तो 9/5 डिग्री सी प्लस 32। इसी तरह केल्विन को डिग्री सी में कन्वर्ट करना, सॉरी डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिग्री सी में 273.15 ऐड कर देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट कन्वर्जन यूनिट है जिसका इस्तेमाल होगा और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट्स का। तो ये था यूनिट इस चैप्टर का। थैंक यू।